Hello, dear students. How are you all? I hope all of you are doing well. Children, as you're aware that we have completed the explanation of poem Gifts of Grace honoring our vocation from our class 9th English NCERT book Kaveri. Today we are going to start with the question answers of this poem. Gifts of Grace Honoring Our Vocation is a poem celebrating the dignity of labor and the diverse skilled professions in India, that is Bharat. It highlights every vocation from artisans and carpenters to electricians and boatmen. Every vocation is gift of grace which contributes to the nation's progress and reflect the worker's identity and pride. So this poem asserts that all honest work is honorable, placing manual workers and artisans on equal footing. So let us start with the question answers of this poem. Check your understanding. Based on your understanding of the poem, state whether the statements are true or false. Also rectify the false statement. So in this we have to find out कि statement जो है ये true है या false है, और based on the answer, if it is false, you have to rectify. The poem highlights the skilled work of craft person. So poem जो है ये highlight करती है जो इनका creative या skilled work है craft person का. So this is true. The poet shares the musician express emotion through their instrument कि musicians जो हैं वो अपना जो अपने जो instruments हैं उनके through emotions को express करते हैं. So this is again true. The carpenters in the poem are admired for their logical work. Carpenters जो accuracy से काम करते हैं, ठीक है, so उनको इसीलिए admire किया क्योंकि उनका work जो है वो बहुत logical है. This is true. The electricians in the poem are recognized for their crucial role in lighting up lines. ठीक है, हमारे घर की लाइट्स को, ठीक है, हमारी लाइफ में लाइट्स को लेकर आते हैं इलेक्ट्रिशियन. तो यही बताया गया है पोम में. दिस इज अगेन ट्रू. द पोम pays homage to shoemakers who manufacture quality footwear. So shoemakers जो हैं वो quality footwear जो है वो manufacture करते हैं. Again this is true. The poem celebrates patriotism of people of Bharat. So the poem does not celebrate the patriotism. Instead, this is false. So it celebrates the vocation and craftsmanship of people of Bharat. Okay. The poet feels that each vocation deserves to be respected. So this is true. पोएट जो है वो ये सोचता है कि हर वोकेशन, हर प्रोफेशन जो है वो उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. दिस इज ट्रू. Let us appreciate the poem, rhyme scheme and lineation. Does the poem strictly adhere to rhyme scheme or it is in free verse? क्या इसमें कोई rhyme है या ये free verse में? So it does not has any rhyming scheme. The poem is written in free verse. It does not follow any strict regular rhyme scheme. What is the impact of varying length of लाइन्स इन द पोम? ठीक है, लाइन लेंथ जो हमें लाइन्स दी हैं पोम में उसका क्या इम्पैक्ट है? लॉन्गर लाइन जो है वो क्या बताती हैं? डिस्क्राइब वोकेशन इन डिटेल. शॉर्टर लाइन्स क्रिएट एम्फोसिस एंड पंच. ठीक है, वो किसी चीज़ पे एम्फोसिस डालने के लिए जो है प्रेशर डालने के लिए शॉर्टर लाइन्स का यूज़ किया जाता है. लॉन्गर लाइन्स जो है वो क्या बता रही है पोम में? कोई भी वोकेशन. इट प्रिवेंट्स मोनोटनी. मोनोटनी मतलब क्या? बोरिंग जो होती है उसको सही करती है. कीपिंग द रीडर इंगेज्ड एज ईच लाइन अराइव्स विथ स्लाइटली डिफरेंट रिदम. What is the pattern in the structure of most lines of the poem? इसमें क्या पैटर्न है? Most line follow a pattern of naming a vocation followed by description of what they do and how they do it. तो ज़्यादातर लाइंस में क्या है? एक पैटर्न फॉलो किया गया है नेमिंग अ वोकेशन. ठीक है, पहले नाम दिया हुआ है जैसे शू मेकर. ठीक है, फिर वो उसकी डिस्क्रिप्शन बताई हुई है. ठीक है, और फिर ये बताया कि वो क्या करते हैं और जो है कैसे करते हैं. Then speaker. Who appears to be the speaker and what is her or his role here? So the speaker here is to be an observer or
अ पोएट और अ थॉटफुल सिटीजन, ठीक है, क्योंकि पोएट का हमें यहाँ नाम नहीं दिया हुआ, तो वो पोएट है स्पीकर या फिर एक थॉटफुल कोई सिटीजन है, हु स्टैंड्स अमिड इंडियाज वाइब्रेंट वर्किंग लाइफ एंड सेलिब्रेट एवरीथिंग दे विटनेस, ठीक है, इंडिया के लिए जो वर्किंग लाइफ के लिए उन्होंने ये पोम जो है वो लिखी है. देयर रोल इज दैट ऑफ अ विटनेस और celebrant who gives voice and dignity to every vocation. Okay. Tone and mood. Now fill in the blanks. यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं: serious, celebrity, hostile, reverential, joyful, sympathetic. The tone is celebratory and reverential, depicting a sense of admiration and respect for artisans and craftspersons. इसकी टोन कैसी है? सेलिब्रेटरी और रेवरेंशियल. देयर इज अ डैश मूड. कैसा मूड है? जॉयफुल मूड थ्रू आउट द पोम, कैप्चरिंग द वाइब्रेंसी एंड रिचनेस ऑफ कल्चरल ट्रेडिशन एंड स्किल्स. इमेजरी. सिलेक्ट एनी टू डिस्क्रिप्शंस दैट इवोक विजुअल इमेज. ऐसी कोई डिस्क्रिप्शंस बतानी है हमें जो विजुअल इमेज जो है बताती हो हमें, मतलब हमें रीड करने से पता लगे कि हम मतलब उसको इमेजिन कर रहे हैं विजुअली. तो फर्स्ट इमेज है द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स. जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमें सच में लगता है कि बोटमैन जो है वो अपनी नेट्स को गैदर कर रहे हैं फ्रॉम द शोर, सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, रिटर्निंग टू टेल द टेल्स ऑफ सी एट ऑफ लाइफ एट सी. ठीक है, वो अपनी वापस आने पे अपनी सारी जर्नी, अपने सारा एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं. इवोक्स अ विविड पिक्चर ऑफ बोटमैन एट शोर लाइन. तो जब हम ये लाइन पढ़ते हैं तो हमें लगता है बोटमैन को शोर लाइन पे खड़ा हुआ देख रहे हैं. विजुअल इमेज 2 कौन सी है? दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट ओवन विथ कलर्स एंड मायरेट ह्यूज. तो क्राफ्टमैन की बात की जा रही है कि वो अपने क्राफ्ट के ज़रिए किस तरीके से कलर्स के थ्रू और अलग अलग वेरीड कलर्स के थ्रू जो है वो अपना काम जो है या अपना स्किल जो है वो शो करते हैं. राइट. Fill in the blanks with the suitable phrases. The poem include auditory image through mention of artisan and lutes. Auditory image मतलब जो हम जो सुन रहे हैं, सुनकर हमें जो इमेज नजर जो है वो सुनाई दे रही है आर्टिसन और ल्यूट्स की. ठीक है. इलेक्ट्रिशियंस हमिंग एंड द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक emphasizing the sound associated with each vocation. Metaphor. State whether the sentence is true or false. The mention of delicious singing of cook is a metaphor because it implies that quality of singing is so enjoyable or pleasing that it can be equated to experience of tasting something delicious. So delicious singing क्यों बोला गया है यहाँ पर कि कुक या शेफ के लिए जब वो काम कर रहे हैं तो खाना बनाते बनाते वो गाने गा रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर मेकिंग समथिंग डिलीशियस. This is true. Personification. Select the line that tells that the poet personifies vocation by attributing human-like qualities to them. So personification में आएगा कि the voice of their vocation is the voice of their identity. ठीक है, कि उनकी जो vocation प्रोफेशन की जो वॉइस है या जो वो प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं या जो वो स्किल दिखा रहे हैं अपनी, वो उनकी अपनी आइडेंटिटी है. रिपीटिशन. Why might the poet have begun and ended with the same line? ऐसा क्यों हुआ कि पोएट ने पोम को स्टार्ट भी एक ही लाइन से किया, आई हेयर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशन आई हेयर, ठीक है, और एंड भी इसी लाइन से किया. वाई इज इट सो? ठीक है, एक तो फीलिंग ऑफ यूनिटी, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ यूनिटी सजेस्टिंग इंडियाज वोकेशनल रिचनेस इज अनएंडिंग. इससे फीलिंग ऑफ यूनिटी आ रही है. ठीक है. एम्फोसिस डालने के लिए, प्रेशर डालने के लिए. रिपीटिशन हैमर्स होम दैट भारत सेलिब्रेट ऑल वोकेशन टुगेदर, कि यहाँ पे सारे वोकेशंस को बराबरी मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है और सारे वोकेशन सेलिब्रेट किए जाते हैं. म्यूजिकल क्वालिटी, एक रिदमिक टोन देने के लिए, लाइक अ जॉयफुल कोरस द एंटायर नेशन जॉइंस. ऑलिट्रेशन. 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑलिट्रेशन इन द पोम जहाँ पे रिपीट हो रहे हैं कुछ फर्स्ट जो लेटर्स हैं. लाइक एग्जाम्पल 1 सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, तो सी रिपीट हो रहा है यहाँ पे सेलिब्रेटिंग और क्राफ्ट में. सेलिंग एंड सिंगिंग, एस रिपीट हो रहा है यहाँ पे. ओके. देन सिम्बोलिज्म. ईच ओकेशन इन द पोम सिम्बलाइज समथिंग मोर देन जस्ट अ जॉब. व्हाट डज इट सिम्बलाइज? हर वोकेशन को जो है कुछ ना कुछ वो
सिंबलाइज कर रहा है या हमें कुछ बता रहा है। तो आइडेंटिटी एंड यूनिकनेस, हर वोकेशन की अपनी ही आइडेंटिटी है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज वॉइस ऑफ आइडेंटिटी। अ पर्सन क्राफ्ट इज नॉट जस्ट व्हाट दे डू, इट इज हु दे आर। वो जो काम करते हैं, ठीक है, जो उनका वोकेशन है, वो ही उनकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी और यूनिकनेस को बताना, कल्चरल हेरिटेज को शो करना। क्राफ्ट पर्सन एंड आर्टिसंस कैरी नॉलेज एंड वैल्यू ऑफ देयर कम्युनिटीज अक्रॉस जनरेशन, ये सिंबलाइज करता है। कल्चर हेरिटेज को शो करता है। डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है, कि यहाँ पे अलग अलग काम है, डिग्निटी और लेबर को जो है वो यहाँ पर डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स हर चीज़ से रिस्पेक्ट मिलती है। द पोएम चैलेंजेस सोशल हायरार्कीज। द इलेक्ट्रिशियन इज एज सेलिब्रेटेड एज द डिज़ाइनर। द शू मेकर इज, तो इलेक्ट्रिशियन से लेकर डिज़ाइनर तक, शू मेकर से लेकर आर्किटेक्ट तक, सबको सेम रिस्पेक्ट मिलती है, राइट। क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, read the following extract and answer the question. The shoemakers affirming the quality of their work for the feet that walk, dance, run, jump, return home. The delicious singing of the cook or the rhythm of designer mason, each celebrating what belongs to them and to none else. The poet says that shoemaker affirm the quality of work. What does affirm refer here? affirm का क्या मीनिंग है? जो शू मेकर है वो क्वालिटी इनकी अफर्म करते हैं। अफर्म मीन्स क्या होता है? टू डिक्लेयर समथिंग विद प्राइड और कॉन्फिडेंस, ठीक है। टू मेक एडजस्टमेंट इन, टू डिक्लेयर विद कॉन्फिडेंस, टू लेबर द गुड्स, टू जस्टिफाई द एफर्ट्स। तो द करेक्ट आंसर इज टू डिक्लेयर समथिंग विद प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। वॉट टू क्वालिटीज शूज हेल्प विद अकॉर्डिंग टू द पोएट? क्वालिटी शू किस में हेल्प करते हैं हमें? दे हेल्प अस इन डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, ठीक है, running, dancing, jumping, and returning home safely, enabling people to live fully from labor to leisure. Then what does return home symbolize besides the literal act of returning? ठीक है, रिटर्न होम का मतलब वापस आना, ठीक है। तो पर यहाँ पर ये जो वर्ड यूज किया रिटर्न होम का क्या मीनिंग है? कि सेफ्टी एंड कंप्लीशन। द शू मेकर या शू मेकर क्राफ्ट इनेबल सेफ जर्नी, ठीक है, हमारी लाइफ के लिए सेफ जर्नी के लिए शूज बनाते हैं। फुल सर्कल ऑफ लाइफ फ्रॉम गोइंग आउट इन टू वर्ल्ड टू रिटर्निंग टू वंस रूट्स एंड रिलेशनशिप। आइडेंटिफाई द फ्रेज दैट टेल्स अस दैट एवरी वर्कर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज डिस्टिंक्ट। ऐसे फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है या बताना है जो हमें ये समझा रहा है कि हर वर्कर का कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टिंक्ट है, अलग है। each celebrating what belongs to them and to none else. Complete the following with suitable words. For the feet that walk, dance, run, jump, return home refers to, इसका मीनिंग क्या है? At all activities journey of human life from daily labor to physical exertion and the safe return home made possible and comfortable. क्यों हुआ ये possible? Because of the shoemaker quality, कि वो किस तरीके का जो है quality shoes बना रहा है। Answer the following question. Why does the poet says I hear Bharat celebrating the varied vocation I hear? Poet ने ऐसा क्यों बोला? The poet uses this line to tell India's true identity lies in living work of its people. यहाँ पे जो लोगों की इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? लोगों के काम पर। द साउंड ऑफ पीपल वर्किंग, जो लोग काम करते हैं उसका जो साउंड है। द टैप ऑफ कारपेंटर टूल, कारपेंटर के टूल का जो टैप, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन का जो हम है, आवाज़ जो गा रहा है, या जो बोटमैन गाना गा रहा है, ठीक है, आर देमसेल्फ अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन। ये क्या है? एक फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन है। इंडिया सेलिब्रेट्स इज वोकेशन नॉट जस्ट इन फेस्टिवल बट थ्रू द एक्ट ऑफ वर्क इटसेल्फ एवरी डे। इंडिया जो है हर दिन इन वोकेशंस को सेलिब्रेट करता है, ठीक है। What does the electrician humming while getting ready for work suggest? इलेक्ट्रिशियन हमिंग जो है वो हमें क्या बताता है? फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, कि वो अपने काम से खुश है, रिलैक्स्ड है, पॉजिटिव माइंड में है, ठीक है। कंटेंटमेंट मतलब ही इज सेटिस्फाइड विद द वर्क, रिलैक्स्ड है। इट सजेस्ट इलेक्ट्रिशियन अप्रोचेज वर्क विद कंटेंटमेंट इन रिलैक्स पॉजिटिव इनर स्टेट। फीलिंग ऑफ केयर फ्री, कि वो ही इज केयर फ्री मतलब वो फ्री है, बर्डन नहीं है उसके माइंड में। It humanizes the electrician, showing a person at ease in their vocation, not merely burdened by it. Dignity of labor, that he brightens our life, hums cheerfully, treating work as a calling. Explain the significance of line.
द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस लाइन का? वर्क एज वॉइस, ईच क्राफ्ट पर्सन स्पीक्स थ्रू देयर वर्क। क्राफ्ट पर्सन अपने काम से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी स्किल से, जो वो काम कर रहा है उससे बात कर रहा है, ठीक है, अपनी क्राफ्ट से जो वो शो कर रहा है। कारपेंटर अपने फर्नीचर से, वीवर अपने क्लॉथ से। कैरिंग देयर पर्सनैलिटी, कल्चर एंड वैल्यूज। डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, हर वोकेशन को इक्वल रिस्पेक्ट दी गई है। ऑल वोकेशन डिजर्व इक्वल रिस्पेक्ट बिकॉज ईच इज द यूनिक वॉइस ऑफ यूनिक ह्यूमन बीइंग। हर आवाज़ जो है वो अलग है, क्यों? क्योंकि वो हर अलग ह्यूमन बीइंग की आवाज़ है। कल्चरल कॉन्टीन्यूटी, मैनी वोकेशन आर पास डाउन थ्रू जनरेशन, ठीक है। कल्चर कैसे कॉन्टिन्यू हो रहा है? क्योंकि जो वोकेशंस है वो डिफरेंट जनरेशन को पास ऑन हो रहे हैं। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज also accumulated voice of their ancestors, a living bridge between past and present. Question number 4. Do you think the role of all people belonging to different vocation is important in our daily life? Support your answer with a reason. क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं उनका जो रोल है डिफरेंट वोकेशंस में, क्या वो इम्पोर्टेंट है? Yes, absolutely. Even a single ordinary day depends on dozen or different worker. If any one vocation were to disappear, an entire dimension of daily life would collapse. ठीक है, एक भी अगर वोकेशन ख़त्म हो जाए तो सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके साथ जो सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। सोसाइटी फंक्शन बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंट नेटवर्क ऑफ ऑल वोकेशन। हर वोकेशन एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग वॉट यूनिकली बिलोंग्स टू देम। टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू एवरी वोकेशन इज टू रिकॉग्नाइज द प्रैक्टिकल ट्रूथ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज सस्टेन्ड। ठीक है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन इसी वजह से है, क्यों? क्योंकि हर वोकेशन को रिस्पेक्ट और वैल्यू किया गया है, उसको रिकॉग्निशन दी गई है। तो इसी ट्रूथ पे जो है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी तक जिंदा है। Question number 5. Why is the poet celebrating all the vocation in the poem? Explain by giving examples from your context. Poet हर vocation को celebrate क्यों कर रहा है? The poets celebrate all vocation because they form foundation of society. क्योंकि हमारी society का foundation है। Yet most workers are invisible and their contribution taken for granted. ठीक है, कई workers जो है वो सामने आकर काम नहीं कर रहे, बट वो बैक फुट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनका कंट्रीब्यूशन भी जो है ना वो ग्रांटेड, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, मतलब कंट्रीब्यूशन माना नहीं जाता। बट दे आर नॉट वर्किंग इन फ्रंट, दे आर वर्किंग बैक फुट फ्रॉम आर ओन कॉन्टेक्स्ट। जैसे एक धोबी है, ठीक है, वो क्या इंश्योर करता है? हाइजीन एंड डिग्निटी फॉर दोज हु कैन नॉट वॉश देयर क्लोथ्स। अपने क्लोथ्स खुद नहीं धो सकते तो हम धोबी को दे के आते हैं, ठीक है, ये वॉश भी कर दो और प्रेस करने के लिए भी दे देते हैं। द ऑटो रिक्शा ड्राइवर फेरी स्टूडेंट, वर्कर्स एंड पेशेंट्स डेली। ठीक है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वो रोज़ ही स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को और पेशेंट्स को और बहुत सारे लोगों को जो है वो इधर से उधर लेकर जाता है। हाउ डज द पोएट यूज सेंसरी इमेज टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी ऑफ एवरीडे वर्क? उसने सेंसरी इमेज को कैसे यूज किया है पोएट ने? यहाँ पर ऑडिटरी इमेज यूज की गई है, ठीक है। जब बात की जा रही है कि द आर्टिसंस विद ल्यूट्स ईच हेलिंग वेरिड इमोशन, द इलेक्ट्रिशियन हमिंग, द बोटमैन सेलिंग एंड सिंगिंग व्हाइल एट वर्क, डिलीशियस सिंगिंग ऑफ कुक, मेकिंग द पोम फील अलाइव विद साउंड ऑफ इंडिया वर्किंग। तो सबकी आवाज़ें हमें पता लग रही हैं। आर्टिसंस जो है वो म्यूजिशियंस जो है वो अपने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने इमोशंस को बता रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिशियंस जो हैं they are very much dedicated or content with their work, so that is why they are singing. boatman जो है वो जब काम पर है तब भी वो गाना गा रहे हैं। और जो कुक हैं वो भी सिंगिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड दे आर मेकिंग डिलीशियस फूड आउट ऑफ इट। तो ये सब हमें ऑडिटरी इमेज की तरफ लेके जाते हैं। देन विजुअल, विजुअल क्या है कि बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम शोर, ठीक है। देन क्राफ्ट्समैन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट वोवन विद कलर्स एंड myriad ह्यूज, painting vivid pictures of skilled people in action. Then kinetic imagery, the carpenters working with, इसमें क्या बता रहे हैं हमें कि कारपेंटर मैथमेटिकल प्रिसीशन के साथ, एग्जैक्टनेस के साथ, एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं। द रिदम ऑफ डिजाइनर एंड मेजन,
एंड फीट दैट वॉक, डांस, रन, जंप, ये सब क्या बता रहे हैं? फिजिकल सेंसेशन ऑफ मूवमेंट एंड क्राफ्ट। इसमें ये मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट की बात भी आ गई और क्राफ्ट की बात भी आ गई इसके अंदर, राइट। Vocabulary in context, people of different vocation are described in the poem. Match the vocation, यहाँ पे कुछ हमें vocations दी हैं, ठीक है। A person who studies or grow garden plants, उसको क्या बोलेंगे? आशा वर्कर, वेल्डर, कन्फेक्शनर, हॉर्टिकल्चरिस्ट, सेरिकल्चरिस्ट या गोल्डस्मिथ। So the correct answer is horticulturist. A trained female community health worker, आशा वर्कर। A producer of raw silk, sericulturist. A person whose job is making or selling sweets and chocolates, confectioner. A metal worker who specializes in working with precious metals, goldsmith. A person who fuses material together, welder, right? So now the last question. Identify the word from the column 2 that is not the synonym of words given in column 1. So the first word what we have to do, यहाँ पर हमें जो ये word दिया हुआ है, ठीक है, जैसे myriad, तो इसमें यहाँ पर हमें कुछ कॉलम 2 में वर्ड्स दिए हैं जैसे काउंटेबल, इन्यूमरेबल, न्यूमरस एंड अबंडेंट। तो इसमें एक कोई ऐसा वर्ड है जो इसका सिनोनिम नहीं है, मतलब जिसका मीनिंग डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। तो मेरिएट का मतलब क्या होता है? मायराइट का मतलब होता है जो काउंटलेस हो, ठीक है, लार्ज नंबर, इंडेफिनिटली लार्ज नंबर जो काउंटलेस हो। बट काउंटेबल एक ऐसा वर्ड है, काउंटेबल जो है वो इसका ऑपोजिट है, सिनोनिम नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा? काउंटेबल, क्योंकि काउंटेबल जो है इसका जस्ट ऑपोजिट है। मेराइट का मतलब क्या होता है? मायराइट मतलब होता है जो हम काउंटलेस बोलते हैं जिसको। देन ह्यूज, ह्यूज मी रेफर्स टू डिफरेंट शेड ऑफ कलर, ठीक है। यहाँ पर हमें वर्ड्स क्या दिए हैं? शेड, टिंट, ड्राइंग एंड कलर। तो शेड, टिंट और कलर जो है वो सिनोनिम है, पर ड्राइंग जो है बिल्कुल डिफरेंट है ह्यूज से, ठीक है। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग इज अ विजुअल फॉर्म, विजुअल आर्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये कलर का सिनोनिम नहीं है। प्रिसिशन, प्रिसिशन मतलब एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, देन करेक्टनेस, ये हो गया प्रिसिशन का सेम मीनिंग। कैलकुलेशन इज समथिंग डिफरेंट, कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट है। कैलकुलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑड वन आउट है। देन वेरीड, वेरीड मतलब क्या होता है? वेरीड मतलब डाइवर्सिटी या डिफरेंट, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? असॉर्टेड, डाइवर्स, यूनिफॉर्म एंड डिफरेंट। तो इसमें हमारे पास आएगा यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा होना, ऑल सेम। वेरीड का मतलब होता है डिफरेंट होना। डिलीशियस, डिलीशियस मतलब कोई चीज़ जो टेस्टी हो, ठीक है। और यहाँ पर माउथ वाटरिंग भी डिलीशियस हो गया, ठीक है। इन एडिबल जो है ये क्या है? इन एडिबल इज समथिंग डिफरेंट ओवर हेयर, इन एडिबल, ठीक है। टेस्टी और फ्लेवरफुल, ये सब जो है ये डिलीशियस के एक पार्ट है। सो मायरियट में क्या होगा? काउंटेबल, ह्यूज में ड्राइंग, प्रिसिशन में कैलकुलेशन, वेरीड में यूनिफॉर्म, डिलीशियस में inedible. So these are not the synonym of the words given in column 1. So I hope you have understood all the question answers of this poem. Now I'll see you soon in my next video. Up till then, take good care. Goodbye.